اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ یہ ٹاپک جو ہے ایک مسیحی کے لیے، ایک ایماندار کے لیے جو ہے یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے شاید ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم سے غصے میں یا جذبات میں آ کر ہم بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ شاید اس کا پھر ہمیں بعد میں جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں آج عدم برداشت کی وجہ سے اپنی جان کا خاتمہ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان برداشت نہیں کرتا غصے سے اور جب وہ ہائپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی ایسے واقعات ہو بھی چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے تئیں جو ہے وہ زخمی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ اندر نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برداشت کی وجہ سے بہت ساری ایسی ہمارے لیے جو ہے وہ راہیں کھل جاتی ہیں کہ جب واقعی ہمارے اندر جو ہے برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا ہے۔ ایک ایماندار، ایک مسیحی، ایک بائبل بلیور جو خدا پر توکل رکھتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی سے ہم جانے جاتے ہیں، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا اپنا آپ جب اسی وقت ظاہر ہوتا ہے یا نظر آتا ہے، شاید پہلے ہم چھپے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی جان نہیں پاتا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں پاتا، لیکن جب آزمائش آتی ہے نا تو پھر اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کے جذبات کا، اس کے غصے کا، اس کی برداشت کا، کہ کتنا جو ہے برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے اس کے جو ہے وہ اندر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کے انسان ہیں، ہر طرح کا، ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہے۔ خاندان کے اندر اگر لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، کوئی دھیمے مزاج کا ہے، کوئی غصے والے مزاج کا ہے، کسی کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، کسی کو جلدی غصہ نہیں آتا ہے، اور کوئی برداشت کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، اور کوئی برداشت نہیں کرتا، تو اس کا جو ہے برداشت نہ کرنا اسے جو ہے جہنم کی آگ تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور ہم نے اپنے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، ان سچائیوں کو ہم جانیں گے۔ مقدس متی کی انجیل 10واں باب، اور ہم اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ آمین۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یہاں پر یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہمیں مقدس متی کی انجیل کے اندر نظر آتے ہیں، کہ جو آخر تک برداشت کرے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی کٹھن کام ہے، لیکن جو اس کو کر لیتے ہیں وہ ابدی میراث کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جو اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے نئی راہیں کھل جاتی ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے برداشت کرنا سیکھ لیا۔ برداشت کرنے کا حوصلہ ان کے جو ہے وہ اندر ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہر گھر کے اندر، میں نے بتایا ہے کہ ہر شخص
अपना अपना उसका मिजाज होता है, कोई ठंडे मिजाज का है, कोई गुस्से वाले मिजाज का है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ के अंदर जो है वो पाई जाती हैं और बात का हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप रोड पर जा रहे हो, आप किसी के साथ टकरा जाए तो क्या होगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। बर्दाश्त जो है वो हौसला नहीं है, शायद लड़ाई की नौबत जो है आगे तक चली जाए। गाली गलौज पर लोग आ जाते हैं, मारने पर आ जाते हैं, जरा जरा सी बात पर इंसान को मार दिया जाता है क्योंकि बर्दाश्त का हौसला नहीं है। अब बाइबल मुकद्दस जो है इसके बरक्स बताती है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, सल्वेशन, छुटकारा, रहाई, अब्दी मिरास में वो चला जाएगा और मुकद्दसीन के साथ वो शामिल होगा। 1000 साल बादशाही का वो वारिस होगा क्योंकि जमीन पर रहते हुए उसने जो उसके अंदर अदम बर्दाश्त है, उसने बर्दाश्त करने का हौसला जो है वो रखा है। आज अगर हम कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम मसीही हैं, या शायद हम बड़े नारे लगाते हैं, हम दुआ करके शायद अर्श और फर्श भी हिला देते हैं, लेकिन जब बर्दाश्त की बारी आती है तो फिर उस वक्त फिर हमारी औकात का पता चलता है हम बेसिकली है क्या। फिर लोग क्या कहते हैं? दुआएं तो बड़ी करते हैं, ये चर्च बड़ा जाते हैं, लेकिन बर्दाश्त इनके अंदर है। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर मसीह खुदावंद फरमाते हैं, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अब देखते हैं हमारे मुआशरे के अंदर अदमे बर्दाश्त हद से ज्यादा बढ़ रही है और ये खतरनाक हद तक बढ़ रही है। बर्दाश्त ना करने की वजह से कई जो है लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जिंदगियों का जो है वो ज़िया हो रहा है, इंसान एक दूसरे को मार देता है। और आज अगर हम देखते हैं कि अपने बर्दाश्त की वजह से जो है जब हम बर्दाश्त कर देते हैं तो इससे हम जाने जाते हैं कि वाकई मसीह मोहब्बत जो है हमारे अंदर है, हम दरगुजर कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं। ये एक ईमानदार, एक मसीही की जो है वो निशानी है। आज अगर हम देखते हैं कि कभी आपने गुस्से के मूड में या जज्बात में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो अल्फाज जो हैं दूसरों के लिए जो है वो शायद जिंदगी भर उनके जख्मों को ना भर सके। आपका गुस्सा, आपके जज्बात, थोड़ी देर में आपका मूड ठीक हो जाएगा। आपने गुस्से में आकर, जज्बात में आकर, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं और जज्बात में आकर, गुस्से में आकर बहुत सारी बातें आपने अपने मुंह से उगल दी। थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा ठंडा हो गया, आपका मूड बिल्कुल ठीक हो गया, फ्रेश हो गया। लेकिन जिसको आपने ये अल्फाजों के तीर मारे हैं शायद जिंदगी भर उसके जख्म ना भर सके। हम ऐसे अल्फाजों से दूसरों को नवाजते हैं। बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज पाएगा। और बर्दाश्त करना बेसिकली क्या है? झीलने का अमल है। किसी भी बात को, किसी भी चीज को जब हम झील रहे होते हैं तो हम्मल, सब्र, ज़ब्त, जब हम सब्र का दामन नहीं छोड़ते, इसको हम कहते हैं कि बर्दाश्त करना। आज घरों के अंदर फसादात क्यों होते हैं? क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। मियाँ बीवी की चपकलश शुरू हो जाती है क्योंकि बर्दाश्त, अगर एक बर्दाश्त करेगा, अगर एक बोल रहा है तो थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा और लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों का पारा हाई है तो फिर इसका मतलब है कि भी गड़बड़ है। आने वाले हालात, आने वाला वक्त जो है वो जो है खतरे की घंटी बजा रहा है। तो इसलिए जब एक झुक जाता है तो फिर मामला दुरुस्त हो जाता है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, कुलसियों का खत निकालिए फिर साहब, 3 बाब, और उसकी हम 13वीं आयत को जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में जो है वो क्या लिखा है? 3 बाब 13वीं आयत को पढ़ दीजिए, जिसको भी ये हवाला जो है वो मिलता है। क्या लिखा है यहाँ पर?
हाँ जी पढ़े। किसी को तनाज़ा की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ करें। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करें? मुश्किल काम है, बर्दाश्त नहीं हो सकता। असी टेट का जवाब पत्थर के नाल देना ही देना है। बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर क्या करे? मुआफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। अमल हम नहीं करते। अमल करना तो जो है ये बड़ी दूर की बात है। हम इसके पास से भी नहीं गुजरते। हम सुन तो लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप वाकई हकीकी ईमानदार हैं, हकीकी मसीही हैं, आप मसीह यीशु के पैरोकार हैं, तो मसीह यीशु की हालात जिंदगी को देखिए। बर्दाश्त मसीह के अंदर, जिसके आप पैरोकार हैं, जिसने आपके लिए सलीब पर जान दी, सलीब के ऊपर लटके हुए हैं, तो क्या कह रहे हैं? बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बर्दाश्त मसीह यीशु आपको सिखा रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है कैसे आपने अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को गुजारना है। हम सिर्फ खोखले नारे मारने वाले लोग हैं, बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं है। हम वो लोग हैं कि जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, हमें सुकून ही नहीं मिलता, चैन ही नहीं मिलता। अब बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। ये है असल में मसीही मोहब्बत। और करंथियों के खत को जब हम पढ़ते हैं, पहला करंथियों 13वां बाब उसकी पहली आयत में, कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर बर्दाश्त नहीं आपके अंदर, ये सबसे बड़ा जरूरी काम है जो हमने इस दुनिया में रहकर करना है। आज अगर बिला वजह आपको कोई तंग कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो बदले में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, बिला वजह आपको तंग कर रहा है? एक ईमानदार होते हुए, एक रास्तबाज होते हुए आप क्या करेंगे? उसके लिए दुआ करेंगे, अच्छा जा भाई, खुदा तेरे रहम करे, खुदा तेनू बरकत दे, खुदा ही तेनू पूछे। एक ईमानदार के अल्फाज होते हैं, वो नहीं लड़ता। उसको पता है कि मेरी लड़ाई खुदा ने खुद ही लड़ लेनी, मेरी जंग खुदा ने खुद ही लड़ लेनी, मुझे लड़ने की क्या जरूरत है? तो जब आप बर्दाश्त करते हैं और आपके अंदर जो है बर्दाश्त करने का हौसला है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा बना रहा है, आप जब बर्दाश्त करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसके सर पर अंगारों का ढेर लगा देते हैं। तो जब आपने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ ली, तो फिर लिखा है कि आप में और उसमें क्या जो है फर्क होगा। हमेशा खुदा को लड़ाई लड़ने दें, खुदा को जंग करने दें। अगर आप ईमानदार हैं, अपनी लड़ाई आप खुद ना लड़ा करें, आपने बर्दाश्त करना है। और बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, अगर किसी दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें। क्या करना है? बर्दाश्त करना है। हौसला, ये खुदा से हौसला मांगना है, खुदा मुझे हौसला दे, मैं बर्दाश्त करने वाला जो है बन जाऊं, और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे तुम भी करो। आज हमारे लिए सवालिया निशान है, क्या हम करते हैं? अब लिखा है, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए तुम भी करो। क्या हम आज कर रहे? क्या आज हम कसूर मुआफ कर रहे? क्या आज हम बर्दाश्त कर रहे? तो फिर हम कैसे मसीही हैं? हम कैसे ईमानदार हैं? हम कैसे रास्तबाज हैं? क्या हमने सिर्फ
टाइटल ले रखा है क्रिश्चियन होने का, काम हमारे क्रिश्चियनिटी वाले नजर नहीं आ रहे, बाइबल के मुताबिक हम चल नहीं रहे, बाइबल को हम फॉलो नहीं कर रहे, कलाम के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो फिर हम जो है नाम के सिर्फ मसीही हैं। क्योंकि जब तक हम कलाम पर अमल नहीं करेंगे तब तक जो है हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। मसीहत के अंदर, मसीहत जो है हमें बर्दाश्त करने का दर्स देती है, और ये दर्स बाइबल मुकद्दस में है। बात हमें किसी की बात नागवार गुजरती है और वही एक आजमाइश का वक्त होता है कि हमने जो है बर्दाश्त करना है और फिर जो है या फिर अपने गुस्से का इजहार करना है। बात हमारी लाइफ के अंदर आजमाइश आ जाती है। ईमानदार, रास्तबाज, बाइबल बिलीवर, बड़े दुआ करने वाले जब इन आजमाइशों से गुजरते हैं तो बात वो फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमारे इम्तिहान की घड़ी जब आती है, हमें उस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, वो जिंदगी का ताज पाएगा, वो अपनी मेराज का हिस्सा बनेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त कर रहा है। उसके अंदर खुदा का कलाम है, खुदा का खौफ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर किसी दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। ये खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। आइए एक और हवाला देखिए, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों का खत है, उसका 13वां बाब और उसकी हम 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। आमीन। यहाँ पर लिखा है सब बातों की बर्दाश्त करती। ये पहला कुरिन्थियों 13वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मोहब्बत के बारे में लिखा गया है, और मोहब्बत जब आपके अंदर है तो लिखा है वो सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। और बर्दाश्त क्या है? झेलने का अमल है, तहम्मुल है। ये बड़ा मुश्किल काम है। आप सारे काम कर लेंगे, ये काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने ये फजल बख्शा है कि वो बर्दाश्त करते हैं। अब वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो खुदा की बरकत को ले रहे हैं, खुदा उनको अजर दे रहे हैं। लेकिन जो बर्दाश्त नहीं करते वो अजर से महरूम है, बरकत से महरूम है, क्योंकि वो कलाम को फॉलो नहीं कर रहे। तो यहां पर लिखा है सब बातों की बर्दाश्त करती है। इसी के साथ एक और हवाला निकालिए, इफिसियों 4 बाब, इसको हम जो है पढ़ेंगे। इफिसियों 4 बाब और हम उसकी जो है दूसरी आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? यानी कमाल फरोतनी और इल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। आमीन। यहाँ पर अब इफिसियों के खत में लिखा है, यानी कमाल फरोतनी और इल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। क्या करो? एक दूसरे की बर्दाश्त करो। ज्यादातर तो मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ती है, और ये हुक्म खुदा के कलाम मुकद्दस में है। अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, आइडियल कपल बनना चाहते हैं और एक खुशगवार जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया तो फिर आप अपनी मिरास का हिस्सा बन गए, आप जो हैं वाकई खुदा के बेटे और बेटियां जो है वो बन गए। तो इसलिए बर्दाश्त करने का हौसला जो है ये हमारे अंदर जो है वो होना चाहिए। हम ये ना हो कि हम अपने अल्फाजों के तीर ऐसे चलाएं कि किसी को हम छलनी कर दें, जख्मी कर दें, और बाद में फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाए
फिर हम कहते हैं जी सॉरी गलती हो गई। इसलिए हमने अपने अल्फाजों का चुनाव बड़े सोच समझ कर करना है। सबसे पहले खुदा से ये हिकमत मांगनी है कि खुदा मुझे ये फजल अता कर, ताकि मेरे अंदर ये हौसला आ जाए। हौसला बड़ी चीज़ है, कई लोग हौसला हार जाते हैं। हौसला ही है जो आपको लेकर चलता है, हौसला ही है जो आपको मंजिल पर पहुंचा देता है, हौसला ही है जब आप एक ठान लेते कि नहीं ये मैंने करना है। तो इसका मतलब है कि हौसला जब आपके अंदर है, बात का हौसला नहीं होता किसी चीज को बर्दाश्त करने का। तो बाइबल मुकद्दस जो है हमारी काट छांट करती है, हमें सिखाती है, हमारी रहनुमाई करती है कि हमने बर्दाश्त करने का हौसला जो है वो अपने अंदर रखना है। तब हम जाने जाएंगे कि वाकई ये खुदा के लोग हैं, हम अलग किए हुए, हम चुने हुए हैं, हम दूसरों से मुनफरिद हैं। तो मुनफरिद शब्द जो होता है वो लग थलग नजर आता है, और जब वो लग थलग है तो इसका मतलब है कि मसीह की मोहब्बत उसके अंदर है। आज अगर मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम क्या हैं? ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हैं। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। बात का हमारा रवैया ऐसा होता है, हम शायद मज़बा पर पुलपट पर कुछ और होते हैं, चर्च में कुछ और है, बाहर हम कुछ और होते हैं। हमें जो है एक तरह का जो है खुदा चाहता है कि हम नजर आए, हमारी गवाही जो है वो बिल्कुल ऐसी हो कि लोग जाने कि जैसे हम बाहर हैं, बाहर के लोग गवाही दें, अंदर के लोग गवाही दें, कलीसिया के लोग गवाही दें। तो फिर हम जाने जाएंगे कि वाकई हम खुदा के लोग हैं। और बर्दाश्त करना जो है, इसका हौसला रखना, ये हमारे लिए जो है ये बड़ा जो है वो जरूरी है। अगर आज आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं ना, तकदीर को, तो फिर अदम बर्दाश्त का होना हमारे अंदर जरूरी है।